Hello everyone. How are you all? I hope you all doing well. तो आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव एंडोमेंट जो कि क्लास 10th के बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एडजेक्टिव एंडोमेंट को करने से पहले हमें इन 3 केसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप ये आपको पहले से पता होगा और अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर हम नॉमिनेटिव केस की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, जैसे कि das ist ein Brot। यहाँ पर सिर्फ ब्रोट की बात हो रही है। Der Hund bellt, bellt means barks। सो यहाँ पर ब्रोट और हुंड नॉमिनेटिव केस में है। यही इस पूरे सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है इट इज ऑलवेज nominative. And when we have object, so it can be either accusative or dative. Ich habe einen Spitzer. Ich suche mein Buch. This is accusative case. You can see here, it is der Spitzer. So, ein Spitzer, yeah, it changes to einen because it is accusative case. Das Buch. Ich suche mein Buch. Mein remains mine only. It does not change to meinen because it is neutral. It is das Buch. In the accusative case, we have a subject and a direct object. The object is mostly, I'm saying mostly, please remember, not always. It is mostly non-living things. So we have some accusative verbs like suchen, finden, brauchen, and dative. In dative case, we have a subject, we have an object. And in dative case, mostly, I'm saying mostly, the object is living being. So helfen and schmecken, these are dative verbs. So ich helfe dem Mann. Here we write dem. Dem because helfen is dative verb. So dem Mann is dative here. Schmecken. Schmecken means to taste good, right? Taste. So der Apfel schmeckt mir. Here we have written mir. Mir means me. It is because schmecken is dative. Yeah, so in this case also we have a subject and an object. Here ich is subject, then dem Mann is object. Der Apfel is subject and mir is object. Now we move on to our main topic, which is adjective and noun. So we have 3 tables given here. Adjective endungen nach dem Null-Artikel. Null-Artikel oder ohne Artikel. That means without any article, right? For example, here. This table follows simple der, die, das wala rule. Yeah, यार, ये, yes, der, die, das, है ना? Plural में e. Accusative में den, die, das, e. Dem, der, dem, en. जो हमारा nominative, accusative और dative में table होता है, वो वाला. Here, when we have these articles, unbestimmten Artikel, ein, eine, einen oder mein, dein, sein, ihr. Then also for this part, we have the same rule.
for this part. You can see there the das, then the das. But क्या होता है? Dative पूरा en होता है, plural पूरा en होता है. जब भी article हो, right? Whenever you have an article, तो dative case है तो वो en हो जाएगा. Plural है अगर मतलब कोई भी आर्टिकल है हमारे पास और वी हैव प्लूरल थिंग तो भी पूरा हमारा en होता है. सिमिलरली इसमें भी पूरा प्लूरल en होता है, मतलब जो हमारा bestimmt आर्टिकल होता है तो इसमें भी दाटिव में यहाँ पर भी पूरा en होता है. ऊपर देख सकते हो der netter, we write e here, die netter, das netter, den netten, die netter, das netter. आपको याद करने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आई हैव मेनी ट्रिक्स विच आई विल बी टेलिंग यू, जिससे कि ये याद करना आपको बहुत इजी रहेगा. शुरू में सबको ये याद करना बहुत मुश्किल लगता है कि वी हैव different endings for different cases, different articles. बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है. So this is page number 23 and I will be solving each and every question. So whenever you have to solve these types of questions, first you need to know which case it is. Nominative, accusative, or dative, which we have discussed in the beginning of this video. So let's look at the first question. Das ist. E is not here. That was by mistake typed. Das ist frisch Brot. We have to add an ending here. Adjective endungen. So which case is it? It is nominative. This is nominative case. This is nominative case. So, and Brot is das Brot. Because this is nominative because we only have the Brot. We're only talking about the Brot. Brot is the main subject here. So, this is nominative case. And Brot is das Brot. Right? So, if you look at the table, neutral, nominative, we have to add an es here. Right? Frisches Brot. Then this sentence is accusative. We have a subject here and an object. Object is non-living, so this is accusative case. You can understand it like this. This is for convenience. And ich esse frisches Brot. If you look at the first table, याद है der, die, das, den, die, das. So accusative में भी neutral में es आता. अब यहाँ पर mit आ गया. Mit is pure dative. Pure dative. So we Brot जो होता है वो das होता है तो mit frischem हो जाएगा. फिर em आ जाएगा. You remember first table, right? First table में dative अगवाल आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूट्रल में जाएंगे तो em आता है यहाँ पर. Mit frischem Brot esse ich. If you open this sentence, how is it this sentence written? Ich esse frisch dash Käse mit frischem Brot. अगर आप इसको ऐसे खोल के देखोगे ना तो मेन ऑब्जेक्ट ये है. ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है. जो भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद जो भी चीज लिखी हो वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है. अगर हम केस की बात करते हैं तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट में लगता है. तो यहाँ पर मेन सेंटेंस तो हमारा ये है. ये तो बाद में जो आया है ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है. इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं सेंटेंस को तब हम लोग ऐसे लिख पाते हैं.
तो ये मेन सेंटेंस तो ये है, इश esse frisch Käse। तो इसमें केजर जो होता है वो देर होता है, तो हमारा ये आकुजाटिव हो जाएगा बिकॉज ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फ्रिशन आ जाएगा। रिमेंबर फर्स्ट टेबल देन दी दास वाला केस चलता है, तो मास्कुलिन में ईएन आता है, तो यहाँ पर ईएन हो जाएगा। Was kosten frisches Brot, frischer Butter und frischer Käse, because ये nominative है, right? We just asking the cost of these things. तो ये सारे के सारे subjects हैं, इसमें कोई object नहीं है ना? So this is nominative case, है ना? आप ऐसे लिखते हैं ना, Brot kosten frisches Brot und frischer Butter kosten 50 Euro. So अगर हम ऐसे लिखते हैं, जब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो नॉमिनेटिव होता है। तो आपको याद हो या लगता है नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट टेबल में। Okay, now we have this thing. This is accusative. We have a subject. We have object. So this is plural, yeah, plural. और फर्स्ट टेबल में आपको याद हो प्लूरल में ई आता है ना? तो यहाँ पर ई आ जाएगा। आकुजाटिव में फर्स्ट टेबल आकुजाटिव, बिकॉज यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है तो फर्स्ट टेबल देखेंगे। आकुजाटिव में प्लूरल में यहाँ पर ई आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट देखो, अगर आप यहाँ पर आपका उमलाउट है बुक में, उमलाउट का मतलब प्लूरल। तो आपको याद हो फ्रिश डैश एप्फल कॉस्टन 150 रुपये प्रो किलो। तो यहाँ पर यही एक मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है कि ये कितना, इसकी कॉस्ट कितनी है, बस यही तो बता रहे हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो चीजें तो है नहीं, सिर्फ एक ही चीज है सब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट बता रहे हैं वो। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, और ये हमारा प्लूरल है, तो फर्स्ट टेबल में नॉमिनेटिव केस में प्लूरल जो होता है उसमें ई आता है। ओके, प्योर जो होता है इट इज प्योर आकुजाटिव, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो ये आकुजाटिव होता है, प्योर 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 आकुजाटिव। जब भी प्योर आए इसके आगे जो भी चीज होगी वो आकुजाटिव में चेंज कर देंगे हम लोग। जब भी मिट आए वो प्योर आटिव होता है, इसके आगे जो भी चीज आए वो डाटिव में हो जाएगी। तो प्योर सलाट इज देयर सलाट, राइट? सो प्योर फ्रिशन, बिकॉज ये आकुजाटिव है। आकुजाटिव केस में अगर आपको याद हो देन दी दास चलता है, मतलब ईएन आता है ना? मास्कुलिन में ईएन आता है अगर आपको याद हो। तो ब्राउकन, वियर ब्राउकन, वियर इज यहाँ पर सब्जेक्ट, राइट? एंड ब्राउकन इज वर्ब एंड दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ब्राउकन वियर को रीअरेंज कर दो, इस सेंटेंस को आप रीअरेंज कर दो, सो वियर ब्राउकन this thing, these things, so that means ये हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स, we have a subject, we have an object, we have objects, that means ये accusative case हो गया। तो योगर्ट क्या होता है हमारा? It's their yogurt, so ये ना आ जाएगा accusative case, right? And ananas is the, so यहाँ पर e, and Trauben जो होते हैं they are grapes, so right, so यहाँ पर plural grapes, so e first table, right? Then next we have fifth one is Schmilkster. यहाँ पर भी देखो आपके पास subject है and these are the objects, right? ये bonen, wurst, obst, these are the objects. This is also accusative case. So is Schmilkster, frisches Obst, das Obst होता है, right? Wurst, wurst क्या होता है? D. तो E and bonen is grapes. Sorry, bonen is beans. So bonen is plural, so E. Grüner Bohnen. Right? Zoasaison kann man viele essbar Pilze in Deutschlands Welten finden. So Pilze is, fungus or mushrooms type जो things होती हैं हमारी.
तो ये होते हैं हमारी दी, और वैसे भी ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये ई आ जाएगा। Man can finden, ये भी accusative है, right? Man is the subject and filza is the object, and finden यहाँ पर हमारा verb है, that means to find. So man is finding what? Pilza. तो ये हमारा accusative case हो गया. We have an subject, we have object, right? Finden is accusative, right? Mama ist zwei Kartoffelpuffer. अब यहाँ पर बहुत important चीज है. Kartoffelpuffer is what? यहाँ पे zwei आ गया. zwei मतलब two, यानी कि Kartoffelpuffer यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर ई लगाएंगे. यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पर ई हो जाएगा, बिकॉज ये accusative case हो गया. और we have a plural here, तो then e. Remember the first table, right? उसके बाद mit is pure dative. We have already discussed this. So Apfelmus जो होता है, mus जो होता है वो das होता है, तो यानी कि तो यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा, em आ जाएगा, सॉरी, em. Mit kaltem Apfelmus, right? Oder heiße Schokoladensauce, das ist die. तो रिमेंबर मिट के आगे जो एकदम सट के चीज लगी होती है वो हमारा वो डाटिव में चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर डाटिव प्रेपोजिशन है. तो मिट काल्टम Apfelmus. वो इस जब भी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आए तो उसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है कि इस सेंटेंस में क्या होता है. प्रपोजिशन डाटिव है तो आगे जो आएगा इसके सट के जो चीज लगी होगी वो डाटिव हो जाएगी, ठीक है. तो फॉर्म मार्क्ड ब्राउक इश, देखो यहाँ पे देखो इश आ गया, दिस इज द सब्जेक्ट. आई नीड, ब्राउकन इज नीड, आई नीड व्हाट? दीज ऑल थिंग्स. सो आप इसको रीअरेंज करके देखो, इश ब्राउक दिस 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 दिस, यानी कि ये क्या एक्यूजेटिव सेंटेंस आ गया. फिर से केजा होता है हमारा दे, तो en आ जाएगा. Ich brauche frischen Käse. Remember the table. Wurst हमने अभी डिस्कस किया, दी होता है तो weiße Wurst. Fleisch is das Fleisch. So rotes Fleisch. Und Tomaten. Tomaten is plural here. तो क्या हो जाएगा हमारा? Runde rote Tomaten. Right? Then we have Aufgabe 2, जो कि हमारा unbestimmten Artikel पे based. तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर क्या है? Das ist ein junger Mann. तो ये क्या है हमारा? ये जो ये हमारा क्या है? नॉमिनेटिव सेंटेंस बता रहे ना कि that is a young man. तो यहाँ पर मैन जो सब्जेक्ट है, और तो कुछ बात हो नहीं रही है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा तो है नहीं, ये सब्जेक्ट चीज है. तो younger man, right? Remember this thing. यहाँ पर ein netter Vater नॉमिनेटिव है और मास्कुलिन है, राइट? यहाँ पर क्या है? ये चीज नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट चीज है, और मास्कुलिन है, तो युंगर ईआर आ जाएगा. Eine junge Frau und ein junges Kind. देखो यहाँ पर junge Frau, eine junge Frau, जो मतलब उस सेंटेंस के हिसाब से, और यहाँ junges Kind, बिकॉज ये नॉमिनेटिव है, फेमिनिन है तो ई, नॉमिनेटिव है, न्यूट्रल है तो ई एस, क्योंकि मेरा नॉर्मल केस नॉर्मल चलता है वैसे. अब देखो यहाँ पर क्या है? दिस इज हमारा आर्टिकल एंड लोइटर इज प्लूरल. लोइटर इज प्लूरल, तो यहाँ पर ई एन आएगा, राइट? क्योंकि आपको देखा प्लूरल चीज जो है उसमें पूरा ई एन है, चाहे वो कोई भी केस हो, है ना? अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आता है सेंटेंस में और प्लूरल है, तो कोई भी केस हो, नॉमिनेटिव ऑक्सिडेटिव डार्टिव, तुम्हारे ई एन तो आएगा ही आएगा. तो देखो यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर ई एन आ जाएगा, है ना? ये वैसे तो नॉमिनेटिव केस है, आप ऐसे पूरा दिमाग लगाओ कि नॉमिनेटिव केस है और प्लूरल है और आर्टिकल है, राइट? सो नॉमिनेटिव केस है, प्लूरल है, आर्टिकल है, तो यहाँ पर ई है ना. ओके, राइट. सो ich mag meinen neuen Freund Stefan. यहाँ पर इश इज हमारा
subject and object is Stefan, right? तो और mark जो होता है to like, that is accusative object, accusative verb. तो हमारा ich mag meinen neuen, right? और आपको पता है meinen लिखा है तो मतलब वो accusative ही होएगा, right? meinen, तो यहाँ पर einen netten जैसे Vater था, ठीक है, वैसे यहाँ पर meinen neuen Freund, बिकॉज यहाँ पर accusative है तो accusative है और यहाँ पर article है तो en आ जाएगा. टेबल याद रखनी होगी आपकी. accusative है masculine einen netten en. ओके, Stefan ist ein intelligent student. तो आप यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है हमारा नॉमिनेटिव, बिकॉज स्टीफान और स्टूडेंट एक ही जन है और एक ही जन की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ ये दोनों एक ही जन की बात हो रही है. तो स्टूडेंट इज देयर, राइट? तो इंटेलिजेंटर स्टूडेंट, राइट? नॉमिनेटिव से नॉमिनेटिव है और आइन नॉमिनेटिव है और आइन लगा हुआ है, यानी कि आर्टिकल है, तो नॉमिनेटिव है आर्टिकल है तो er ना, जो हमारा नॉर्मल चलता है EREES, राइट? इंटेलिजेंट स्टूडेंट. शुरू में थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है बट इट इज इजी आफ्टर सम टाइम. आप देखो यहाँ पर जू आ गया, जू इज प्योर दाटिव, ठीक है. तो यहाँ पर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब कभी भी आप ये पूरा दाटिव यहाँ पर पूरा en है और इसमें भी पूरा en है, राइट? तो जब भी आपके पास दाटिव आ जाए और आर्टिकल आ जाए, कोई भी आर्टिकल है और यहाँ पर दाटिव केस है तो en. तो यहाँ पर दाटिव है और वी हैव एन आर्टिकल, वी हैव दाटिव, तो en. अलाडाइना, देखो यहाँ पर ये देखो, दिस इज नॉमिनेटिव केस, ठीक है. Yeah, so we have an article here and we have Freunde is plural. Yeah, we have an article here, we have plural thing here. So remember this thing. आर्टिकल है और प्लूरल चीज है तो en लग रहा है यहाँ पर. हर कोई भी केस हो, केस से फर्क नहीं पड़ रहा इसमें. जब भी आपके पास आर्टिकल है और अभी आपके पास एक प्लूरल चीज है तो यहाँ पर केस से फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ, हर केस में en ही है, ठीक है. तो यहाँ पर केस देखने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर आपके पास एक आर्टिकल है और यहाँ पर एक प्लूरल चीज है और यहाँ पर केस देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर en लगेगा, ठीक है. Ich lade meinen alten Freund, meine neue Freundin und meinen neuen Nachbarn. Nachbarn is neighbor, मेल वाला. तो यहाँ पर इश जो है वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है. और einladen जो होता है वो इनवाइट होता है और वो एक accusative verb होता है. Wir helfen einem alten Mann. यहाँ पर helfen है verb, helfen. तो helfen is dative और यहाँ पर आर्टिकल भी है, तो आपको याद हो आर्टिकल है, दाटिव है, तो वो पूरा en था, राइट? तो यहाँ पर en आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एक आर्टिकल ही होता है, ये सारे आर्टिकल्स ही हैं. हिल्स तो काइनन. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर काइनन जो है वो एक आर्टिकल है और लॉयटन जो है वो प्लूरल चीज है. काइनन जो है वो आर्टिकल है और लॉयटन जो है वो प्लूरल चीज है. तो आपको याद हो आर्टिकल चीज है, यहाँ पे प्लूरल चीज है, तो कोई केस से फर्क नहीं पड़ा था, en लग रहा था. तो यहाँ पर आर्टिकल और प्लूरल, तो यहाँ पर en आ जाएगा. अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आई हैव वेरी गुड ट्रिक्स, सो प्लीज वेट. अच्छा, आपके पास नेक्स्ट चीज ये है, ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है तो ई आ जाएगा, याद है ना यहाँ पर नॉमिनेटिव, देयर नेटर, दी नेटर, दास नेटर. तो रिमेम्बर देयर, दी, दास जब भी आए तो ई लगता है. तो इस सुखा दी नेटर, ये वैसे accusative सेंटेंस है. accusative में देखो
फेमिनिन, दी नेटर ही है, ठीक है। Ich frage den freundlichen Herrn an der Haltestelle, ओके। ये हमारा आकुजाटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सॉरी, एंड ये ऑब्जेक्ट है। एंड फ्रागन जो है वो आकुजाटिव वर्ब होता है। So den freundlichen, यहाँ पे देखो आकुजाटिव है और मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे den en आता है यहाँ पे, राइट। ओके, kennst du die hübsche Frau an der Klasse? ये सेंटेंस जो है वो आकुजाटिव है। डू यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, फ्राउ जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, राइट। डू kennst die hübsche Frau, इसको रीअरेंज करके देख सकते हैं। Ich denke an das nette Kind. Denken an याद है आपको फेस्टिव preposition जो आपने 9th में पढ़ा होगा। Denken an plus accusative. Yes. Denken an plus accusative था, तो ये यहाँ पर है। 6 में wir besuchen die Alt-Leute im Dorf. तो आपको याद हो ये wir is subject, Leute is object, besuchen जो होता है ना accusative verb होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे लॉइटर जो होता है वो प्लूरल होता है। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था आपको कि इसमें प्लूरल पूरा ईएन होता है, तो यहाँ पर ईएन आ जाएगा। Wir wohnen, ये देखो बाय जो होता है वो प्योर डाटिव, ठीक है। So by them guten Freund because dative में तो पूरा ईएन ही है यहाँ पर ना। आर्टिकल हो चाहे बिस्टेम्ड आर्टिकल में पूरा ईएन ही है, और हम बिस्टेम्ड आर्टिकल वाला कर रहे हैं। और यहाँ पे दाटिव हेल्पफुल इज दाटिव वर्ब, तो ईएन ही आ जाएगा, क्योंकि दाटिव है पूरा। बिस्टेम्ड में तो आर्टिकल, बिस्टेम्ड आर्टिकल में पूरा दाटिव में ईएन आता है, और यहाँ पर भी ईएन आ जाएगा। लॉटिन हमारा प्लूरल होता है, लेकिन दाटिव में तो पूरा ही ईएन आता है ना यहाँ पर, चाहे वो प्लूरल हो। तो ये तो पूरा ईएन है, तो यहाँ पर हमने ईएन कर दिया। आई हैव वेरी गुड ट्रिक्स, वेरी गुड ट्रिक्स, जिससे कि आपको ये टेबल मेमोराइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप टेबल अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आपको टेबल मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रिक्स होंगी वो आप ज़रूर देखना। ये पेज नंबर 23 मैंने आज पूरा कवर किया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट कि आप मेरे से कनेक्टेड रहो और गेट रेडी बुक के सारे टॉपिक्स जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th जर्मन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं सब कराऊंगी इस पूरे चैनल पे। तो आप मेरे से कनेक्टेड रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।